में हमारे रूटीन टेस्ट्स जो होते हैं, दैट इज CBC, जिसमें हीमोग्लोबिन का वैल्यू देखा जाता है, जस्ट टू नो दैट यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी अनीमिया. Then there are others like VDRL, which is a test for syphilis. Syphilis होने से अगर किसी को syphilis की problem है, which is actually a sexually transmitted disease, it is a venereal disease. So sometimes you may find it hard to conceive, and if you suffer from syphilis in your first trimester of pregnancy, then there are chances of you passing it on to your baby. And this disease has a simple treatment. Penicillin का एक injection होता है which is given. So this is done for both husband and wife in prenatal investigations. Then we have sugar. RBS is tested. As you all know, India is endemic for sugar or diabetes per se. And before conceiving, everybody should get their sugar tested, so that if they are suffering from sugar, then they should take proper precautions, proper drugs for the same. Another one is thyroid, TSH. TSH values are being done again prenatally, so that if the TSH value should be less than 2.5. Again, TSH अगर आपका abnormal है, it might cause difficulty in conceiving, and later on इससे problem हो सकती है baby के neural development में, intellectual development में, and hearing problems आ सकती हैं. So this is another test which is done prenatally. Now there are some couples जिनको problem आती है who suffer from recurrent pregnancy loss, also known as bad obstetric history. So उसमें हमारी prenatal investigations increase हो जाती हैं. That might include karyotyping of the couple. Now karyotyping is done to see if the couple is suffering from any genetic or chromosomal abnormalities जिसके कारण उन्हें conceive नहीं हो रहा है, या conceive होकर उन्हें बार बार abortion हो जाती है. Now coming on to antenatal investigations. Antenatal period. What is antenatal period? Antenatal period होता है the entire 40 weeks of pregnancy, 9 months of pregnancy, and it is divided into 3 trimesters. First trimester, which starts from the beginning of your pregnancy till 14 weeks. Then from 14 to 28 weeks is the second trimester. And then we have third trimester from 28 weeks onwards till you deliver. Now, why is this routine investigations or what you call screening is important? So that we diagnose what you're suffering from. If you're suffering from any problem, तो हम उसे जल्दी से जल्दी पकड़ लें, उसकी treatment कर सकें, so that you have a healthy pregnancy, you have a healthy baby. Anything अगर हम उसकी ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर देते हैं, so it does not progress to that level कि हम उसकी ट्रीटमेंट ना कर पाए. So that is why clinical, biochemistry and radiological screening and investigations are important in each and every pregnancy. Okay, so Raman, he pause. Okay. Now okay, so whenever you will come to the doctor, whenever your first visit is, आपका BP चेक होगा, आपका वेट चेक होगा, आपका पल्स रेट चेक होगा, so that you're not suffering from high BP, आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है. And then उसके बाद आपकी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होगी, जिसमें डॉक्टर विल लुक एट योर हार्ट, आपकी चेस्ट ऑस्कल्टेट करेंगे, because Indian population में so many people are suffering from heart disease that it is not known to us. And rheumatic heart disease बहुत common है Indian population में. कई mothers को कोई congenital abnormality होती है जैसे ASD वगैरह, which comes in light for the first time when you are pregnant. So जब डॉक्टर आपको एग्जामिन करता है during your first visit, these all diseases come into limelight. Then second आपका BP pulse हो गया, and then there is weight. Weight gain in pregnancy is very important. See, what is healthy weight gain? It is 10 to 12 kgs of pregnancy. Now we have Amanit Saini. Okay. Amanit, you should visit the hospital. I think आप hospital visit कीजिए urgently अगर आपको ये complaints हो रही हैं. ठीक है.
Next, going on to what we were talking about was the biochemistry in pregnancy. जब भी आप फर्स्ट विजिट के लिए डॉक्टर के पास आएंगे, डॉक्टर आपके खूब सारे टेस्ट्स करवाते हैं. दीज टेस्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आपका कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, कुछ वायरल मार्कर्स होते हैं आपके और आपके हस्बैंड के, जो हमने पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया है, वन ऑफ विच इंक्लूड्स VDRL और सिफिलिस का जो प्रॉब्लम होता है. देन HIV टेस्टिंग इज डन, HBS hepatitis B testing is done, and HCV hepatitis C का testing is done. Urine routine examination is done. Pregnancy में urine infection is very common. As such, females में urine infection is more common than males because the length of their urethra is shorter. And ये infection होने के chances pregnancy में और बढ़ जाते हैं. So इसमें आपका urine routine एक baseline first visit पर किया जाता है. Then your TSH level is done. Again, I told you the importance of TSH. TSH क्यों किया जाता है? Because it should be less than 2.5. अगर इसकी value 2.5 से कम नहीं है, then doctor might start you on medicines. It is very important for normal brain development and hearing abilities of your baby. Then TSH के बाद जो हमारा next test है, that is HB electrophoresis. HB electrophoresis एक कंडीशन होती है थैलेसीमिया, वो देखने के लिए किया जाता है. एज वी नो थैलेसीमिया इज वेरी कॉमन. नाउ टेकिंग अ ब्रेक, जस्सी कलसी इज आस्किंग मी, मैम fetal echo is mandatory. Jassi, yes, fetal echo is routinely done these days. इन कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज, अगर पहली प्रेगनेंसी में आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, बेबी में कोई कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन हो, या फिर आपके लेवल 2 स्कैन में बेबी के हार्ट में कोई इकोजेनिक पैच हो, या फिर कोई और कोरोइड प्लेक्सिस सिस्ट या कोई भी एब्नॉर्मैलिटी आपके लेवल 2 स्कैन में दिखती है, देन फीटल इको इज डन. अगर आपके पिछले बेबी में कोई प्रॉब्लम हो या आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, देन अगेन फीटल इको इज डन. सो अगर आपके डॉक्टर आपको फीटल इको एडवाइस कर रहे हैं, और इफ योर एज इज मोर देन 35 years, देन ऑल्सो सम डॉक्टर्स आर गेटिंग अ रूटीन फीटल इको डन. सो यस, अगर आपके डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं, देन इट शुड बी डन. Surbhi Chaudhary, please call the healing reception. Okay, then we have Amneet Seni. Ma'am, आपने Amneet, it's please request, please come to the hospital urgently. Your problems cannot be discussed on a social platform. Now coming on to thyroid function tests. थायराइड की दवाई ज़रूरी है. बहुत लोगों को डर होता है कि एक बार थायराइड की दवाई शुरू हो जाए तो हमें ये दवाई ज़िंदगी भर के लिए लग जाएगी. ऐसा नहीं डरना है. थायराइड की गोली आपको जो शुरू की जाती है वो आपने रूटीनली लेनी है. रमन इज आस्किंग मी, डज अल्ट्रासोनिक वेव्स अफेक्ट बेबी? नो रमन, अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं, दे आर जस्ट साउंड वेव्स विच आर एट अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. So sound waves are not at all harmful to your baby. आपके रूटीन अल्ट्रासाउंड्स प्रेगनेंसी में एक 7 वीक्स पर होता है, देन 11 to 13 वीक्स पर NT-NB स्कैन, लेवल 2 स्कैन एट 18 to 20 वीक्स, 28 वीक्स पर एक और, एंड 36. These 5 scans are routine in an uncomplicated pregnancy. बट अगर इससे ज़्यादा भी स्कैन्स आपकी किसी कॉम्प्लिकेशन के कारण कराने पड़े तो दे आर, इससे आपके बेबी को कोई नुकसान नहीं होता, ना आपको कोई नुकसान नहीं होता, आप करवा सकते हैं. ममता राणा इज आस्किंग मी, अगर पहले टेस्ट हो गए हैं तो भी क्या टेस्ट रिपीट? सी ममता, आपकी प्रेगनेंसी जब शुरू हुई है, जो आपके लास्ट मेंसेस पीरियड है, उसके बाद आपको एक बार टेस्ट कराना ज़रूरी है. बिकॉज ये जो कंडीशंस हैं, कुछ बॉडी में ऐसे चेंजेस आते हैं ड्यू टू प्रेगनेंसी, जिसके कारण थायराइड के लेवल्स और शुगर के लेवल्स बॉडी के चेंज हो जाते हैं एज कंपेयर टू नॉन प्रेग्नेंट स्टेट. एंड ऑल्सो जो वायरल मार्कर्स हैं आपके HBS एंटीजन, HIV, VDRL, HCV, वो किसी भी स्टेज पे ट्रांसमिट हो सकते हैं. सो यस, दे नीड टू बी डन वंस यू आर प्रेग्नेंट. 18 वीक्स आज कंप्लीट हुआ है, IVF प्रेगनेंसी है. मैम कंग्रेचुलेशंस ममता. यस, यू कैन विजिट आवर हॉस्पिटल फॉर रूटीन चेकअप. Now coming on to RBS and HbA1c. HbA1c and RBS are routine investigations for sugar. इंडिया में डायबिटीज, हर किसी की फैमिली में कोई ना कोई बंदा होगा जिसे डायबिटीज है, who is suffering from diabetes. So डायबिटीज के लिए इंडिया इज एन एंडेमिक कंट्री.
प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा। सो आपकी डायबिटिक स्क्रीनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। दिस इज रूटीनली डन। आपकी फर्स्ट विजिट पे एक HbA1c और RBS होगा, एंड देन फॉर द डायबिटीज स्क्रीनिंग GTT इज डन एट 24 to 28 weeks in uncomplicated pregnancies. Now, if you have bad obstetric history, multiple abortions, previous baby की आपकी डेथ हुई है, previous baby आपका overweight रहा हो, या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री सिग्निफिकेंट है और यूर सफर्ड फ्रॉम जेस्टेशनल डायबिटीज इन योर प्रीवियस प्रेगनेंसी, तब आपका GTT फर्स्ट विजिट पर होगा। If it is normal, then it will be repeated at 24 to 28 weeks. Surbhi is asking me, ma'am, मेरा fetal echo test हुआ है, opinion में 2 calcific specks in left ventricle of heart. Likely calcification, mineralization of papillary muscle fibers. Is everything all right? Yes, Surbhi. See, fetal echo में आपके ecogenic foci आए हैं हार्ट में. These are normal. अगर ये आइसोलेटेड फाइंडिंग है, अगर आपके लेवल 2 स्कैन में इसके साथ कोई और किडनी में या ब्रेन में या कहीं भी किसी ऑर्गन में कोई और चेंजेस आए हैं, तो आपको एन्यूप्लॉइडी टेस्टिंग करानी ज़रूरी है। आपका डुअल टेस्ट होना चाहिए, आपका क्वाड्रुपल टेस्ट होना चाहिए। बोथ ऑफ देम डन टुगेदर इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड स्क्रीनिंग फॉर एन्यूप्लॉइडीज। अगर ये नहीं हुआ है, देन NIPT होना चाहिए। यू नीड टू गेट इवेलुएटेड। आपका लेवल 2 स्कैन भी आप बताना आपको ज़रूरी है। आप मेरे को रिपोर्ट भेज दो, देन आई कैन टेल यू बेटर कि वेदर दिस इकोजेनिक फोकाई इन हार्ट इज सिग्निफिकेंट और नॉट, और आगे क्या कराना है आपने इसके लिए। मैम, क्या फॉलिक एसिड टेबलेट खाना कंपल्सरी? यस आरोही, फॉलिक एसिड इज अ मल्टीविटामिन. इट इज very important. Ideally it is started 3 months prior to conception. आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बताते हैं कि हमारे बच्चे का अबॉर्शन करानी पड़ी क्योंकि उसके ब्रेन नहीं बना था या उसकी रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में कोई डिफेक्ट था. These defects are preventable if you take folic acid properly. तो folic acid 3 months prior to conception and for 3 months after you conceive is very important and beneficial to your baby. It should be taken regularly. Right. Now next is, we were talking about GTT. So GTT हमने if you are high risk, then it is to be done at your first visit. Otherwise ये 24 to 28 weeks पर routinely होता है. Now how is GTT done? एक तो आपको ओवरनाइट फास्टिंग 8 आवर्स की मिनिमम फास्टिंग रखनी पड़ती है. यू शुड बी ऑन योर नॉर्मल डाइट. आपने कोई एक्सेसिवली ईट नहीं करना है प्रीवियस नाइट, या आपने कोई फास्टिंग नहीं करनी है. सुबह यू नीड टू रीच हॉस्पिटल एम्प्टी स्टमक. एक आपका फास्टिंग टेस्ट होता है. देन यू आर मेड टू ड्रिंक 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, एंड उसके बाद 1 आवर बाद एंड 2 आवर्स बाद आपकी टेस्टिंग रिपीट होती है, एंड देन यू कैन शो योर द रिपोर्ट टू योर डॉक्टर. Surbhi is saying level 2 and quadruple test are done, but triple test not. Okay, Surbhi. So please share your level 2 and quadruple test report, and I will help you after that. Okay, Arohi. Okay, Arohi and Sidhu. Thank you very much. Now, next we are going to first trimester ultrasounds. Now first trimester ultrasound में, तो first ultrasound is done at 7 weeks, which is viability scan. Why is viability scan important? सबसे पहले because many of us are having irregular periods, so viability scan dating scan होता है. इससे हमें पता लग जाता है कि आपकी exactly pregnancy की dates क्या हैं, आपकी due date क्या है, आपकी investigations किस time पर होनी है, because most of the investigations in pregnancy are done at a particular gestational age. So एंड सेकेंडली इसमें बेबी की हार्ट बीट कंफर्म हो जाती है. दैट इज वाई इट इज नोन एज वायबिलिटी स्कैन. शिखा इज आस्किंग मी, मैम माई लाइकर वॉज 27 at 8 months. At 9 months scan it's 24.1. Now it's 38 weeks pregnancy. Anything to worry about? Shikha, see, your liker, that is AFI, more than 27 है. 27 है. More than 25 is abnormal. It is known as polyhydramnios. अब आपकी प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई है, प्रोबेबली विल गो इनटू लेबर सून, बट वी नीड टू नो कि आपके पॉलीहाइड्रोमियोस की प्रॉब्लम क्यों हुई. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. कई बार बेबी में कुछ कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस हो सकती हैं,
या फिर कुछ इन्फेक्शंस ऐसे हैं जो पॉलीहाइड्रोमियोस कॉज कर देते हैं। आई एम होपफुल कि आपके डॉक्टर ने वो सारे टेस्ट करवाए होंगे एंड ऑल ऑफ देम आर फाइन, सो नथिंग टू वरी, डिलीवर योर बेबी, आई होप यू हैव अ हेल्दी बेबी। ठीक है, द नेक्स्ट स्कैन इन प्रेगनेंसी इज NT-NB स्कैन। NT-NB scan is nuchal translucency and nasal bone, it is known as, and it is done basically to rule out aneuploidies in the baby। जो आपने सुना होगा, special babies होते हैं, babies with Down syndrome who are mentally retarded, who are wheelchair bound। So हमारे पास अब ऐसी टेक्नोलॉजी है कि we can predict the risk of a mother having a abnormal baby at a time when we can take a decision whether to abort the baby or to keep the baby। So NT-NB scan is done at 11 to 13 weeks। ये एक अल्ट्रासाउंड है जिससे हमें बेबी का एबनॉर्मल होने का रिस्क पता लगता है। साथ में NT-NB स्कैन के एक डुअल मार्कर या डबल स्क्रीन होती है, एंड देन बोथ ऑफ देम आर कंबाइंड टू गिव यू अ रिजल्ट। 1:300 उसमें एक रेशियो होता है, उससे आपका ज़्यादा होना चाहिए। इट शुड बी 1:400 और मोर देन दैट। 1:300 से अगर आपका कम है, दैट इज योर चांसेस ऑफ हैविंग एन एबनॉर्मल बेबी आर मोर, सो आपको फर्दर टेस्टिंग उसके बाद करानी चाहिए। आई कम टू दैट लेटर। रितु इज आस्किंग मी, मैम मेरा 8th मंथ चल रहा है और 7 मंथ के लास्ट में मुझे बेबी की पोजीशन हॉरिजॉन्टल फील हो रही है, क्या डिलीवरी तक ये सही पोजीशन में आ जाएगा? रितु, आई थिंक यू शुड गो टू अ डॉक्टर जो आपको अच्छे से बता पाएंगे कि आपकी बेबी की पोजीशन क्या है, बिकॉज बेबी मूव करता रहता है एंड समटाइम्स मॉर्निंग में बेबी की पोजीशन कुछ और होती है, इवनिंग में कुछ और होती है, बट अ डॉक्टर इज द ओनली पर्सन हु कैन कंफर्म कि आपकी बेबी की पोजीशन क्या है। एंड इफ यू आर हैविंग अ हॉरिजॉन्टल बेबी विच मीन्स अ ट्रांसवर्स लाइन, then you need to visit the hospital because उसके साथ कुछ complications associated होती हैं, so you should not be delaying your visit and discuss your query with your doctor. Now, again, to rule out aneuploidies these days, NIPT test के नाम, which is very common, NIPT is done these days। It stands for non-invasive prenatal testing। इसमें आपका ब्लड लिया जाता है और आपके ब्लड से बेबी का DNA एक्सट्रैक्ट करके उसे स्टडी किया जाता है, जस्ट टू सी कि बेबी में अगेन कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम ना हो। NIPT is a very costly test। It is not done routinely and should not be done routinely। It is done only if you have a high risk of having an abnormal baby। अगर आपको पहले कोई डाउन सिंड्रोम या एबनॉर्मल बेबी हुआ हो, या आपकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा हो, या आपके NT-NB स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट पर कोई एबनॉर्मैलिटी आ रही हो, तब आपको NIPT कराना चाहिए। Now, coming on to level 2 scan, second trimester investigation। second trimester में blood tests कुछ ज़्यादा नहीं होते। Hina Thakur is asking me, मैम मेरा थायराइड 5 है एंड 3rd मंथ प्रेगनेंसी है एंड मेरे प्लेटलेट 72,000 है, क्या ये सब नॉर्मल है? Hina, this is not normal। थायराइड TSH की वैल्यू, अगर आपका कहने का मतलब है कि 5 है, तो आपकी TSH की वैल्यू फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 2.5 से कम होनी चाहिए, तो आपको थायराइड का एवेलुएशन कराना ज़रूरी है। दूसरा, आपकी प्लेटलेट काउंट कम है, 72,000 है, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इज 1,50,000, तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में कोई विटामिन B12 डेफिशिएंसी तो नहीं है। कई बार विटामिन B12 डेफिशिएंसी के कारण प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। अगर विटामिन B12 डेफिशिएंसी नहीं है, देन वी नीड टू इवैल्यूएट। कुछ प्रेगनेंसीज में बिना किसी कारण के भी प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, दैट इज नोन एज इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा। सो बट यू नीड टू सी अ डॉक्टर। आपका CBC कंप्लीट होना चाहिए, विटामिन B12 होने चाहिए, एंड कुछ मेडिसिन शुरू होंगी तो आपकी ये दोनों प्रॉब्लम्स ठीक हो जानी चाहिए। हाँ जी रितु जी, आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, level 2 scan is the most important scan in pregnancy। Nobody likes to have an abnormal baby। लेवल 2 स्कैन में बेबी का हर ऑर्गन डिटेल में देखा जाता है, बेबी का ब्रेन, बेबी की आईज, बेबी का लिप्स, पैलेट, नेक, हार्ट, उसके हार्ट के चेम्बर्स एंड बोन्स, स्पाइनल कॉर्ड, किडनीज, इंटेस्टाइन, स्टमक, एवरी ऑर्गन यू नेम इट, एंड दैट इज लुक्ड इनटू डिटेल इन लेवल 2 स्कैन।
हमें लेवल 2 स्कैन से कंफर्मेशन हो जाती है कि फिजिकली बेबी में कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, फीटल इको के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, व्हाट आर द कंडीशंस इन विच फीटल इको इज नेसेसरी। Rahul Prabhakar is saying, ma'am, pain in legs of wife, treatment going with you. See, Rahul, सबसे पहले तो if it is, आपको मेरे को बताना ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ चल रहा है आपका, एंड यूजुअली लेग्स में जो पेन होती है दैट इज क्रैम्पी पेन, जो काफ मसल्स में होती है, फेल्ट मोर ड्यूरिंग द नाइट, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलते हैं इसको। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर और लैक ऑफ विटामिन ई। तो पानी पियो खूब सारा, एटलीस्ट 15 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे। लाइम वाटर ले सकते हो सुबह शाम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड अ पिंच ऑफ शुगर, दैट हेल्प्स अ लॉट। अगर उससे भी फर्क नहीं पड़ता देन यू कैन बी स्टार्टेड ऑन विटामिन ई, एंड बहुत ही जल्दी आपको इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन मिल जाएगा। नाउ सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमारा है क्वाड्रुपल स्क्रीन। क्वाड्रुपल स्क्रीन, अगर आप 11 to 13 वीक्स पर किसी कारण से डुअल स्क्रीन नहीं करा पाते हैं तो उसका अब ऑल्टरनेटिव है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में 15 to 20 वीक्स के बीच में आप क्वाड्रुपल स्क्रीन करा सकते हैं। इट सर्व्स द सेम पर्पस, हमें एन्यूप्लॉइडीज के बारे में बताता है। अब नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपका डुअल स्क्रीन quadruple screen positive आ जाता है, that you are at high risk for Down syndrome or other aneuploidies, then what is the confirmative test? Amniocentesis. Amniocentesis में बेबी के आसपास जो फ्लूइड होता है that is taken for testing and karyotyping fish के लिए उसे भेजा जाता है, and that is 100% sensitive. It will tell you 100% whether your baby is fine or not. Again, this is done in second trimester, 16 weeks plus पर ये किया जाता है। ओके, राहुल प्रभाकर 7 मंथ प्रेगनेंसी चल रही है, अगेन द सेम ट्रीटमेंट। आई होप आपकी वाइफ का बीपी ठीक है, एंड देन हैव लॉट्स ऑफ वाटर एंड विटामिन ई कैन बी स्टार्टेड फॉर योर वाइफ। रितु इज आस्किंग मी, मैम प्रेगनेंसी में लेफ्ट साइड लेटने या सोने के लिए बोला जाता है, और अगर मैं लेफ्ट या राइट पोजीशन चेंज करती हूँ बेबी करवट के नीचे होता है और बहुत तेज मूवमेंट करता है। सी रितु, प्रेगनेंसी में एब्सोल्युटली आप ठीक कह रहे हो कि साइड लेकर ही सोना चाहिए, बिकॉज अगर आप सीधे सोते हैं तो बेबी को ब्लड फ्लो कम हो जाता है। आइडियली लेफ्ट साइड पोजीशन इज प्रेफर्ड, अगर बट ऑल द टाइम यू कैन नॉट बी स्लीपिंग ऑन योर लेफ्ट साइड, सो आप लेफ्ट या राइट साइड दोनों ले सकते हो। बेबी के आसपास खूब सारा फ्लूइड होता है और यूट्रस होता है और आपकी भी एब्डोमिनल वॉल होती है, तो बेबी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आता। डू नॉट वरी कि आपका बेबी को कोई नुकसान हो सकता है इस पोजीशन से। बेबी अगर मूवमेंट करता है देन दैट इज ऑल्सो ओके, नथिंग टू वरी एट ऑल। नाउ सेकेंड ट्राइमेस्टर ब्लड टेस्ट में हम एक हीमोग्लोबिन और यूरिन रूटीन रिपीट कराते हैं। GTT, as I've already told you how it is done and what is the significance of GTT. एक विटामिन D3 टेस्ट है जो हम रूटीनली आजकल हर प्रेगनेंसी में कराते हैं। Some studies have confirmed कि विटामिन D3 deficiency in mother is associated with diabetes in the baby. So and again हमारी डाइट मेनली वेजिटेरियन डाइट है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर सिटिंग इनसाइड द हाउस एंड गोइंग, अगर बाहर निकलते हैं कार में बैठ जाते हैं, ठीक है, बेबी की पोजीशन बिल्कुल ठीक है। Now third trimester is your final trimester. It starts from 28 weeks and till delivery ये आपका चलता है जब तक आप लेबर पेन्स में नहीं जाते। इस थर्ड ट्राइमेस्टर में आपके कुछ टेस्ट रिपीट होते हैं। CBC रिपीट होता है, अगेन हीमोग्लोबिन का स्टेटस देखने के लिए, प्लेटलेट्स का स्टेटस देखने के लिए, एक कोएगुलोग्राम। ममता इज आस्किंग मी, बेबी मूवमेंट्स कब तक फील होता है? ममता, बेबी की मूवमेंट्स इफ यू आर मदर फॉर द फर्स्ट टाइम देन आपको अराउंड 18 to 20 वीक्स पर फील होना शुरू हो जाता है। इनिशियली बेबी मूवमेंट्स बहुत माइल्ड होती हैं, दे फील लाइक बबल पॉपिंग और बटरफ्लाई के विंग्स की तरह फील होता है। इफ यू लाई डाउन वेरी स्टिल तो कभी कभार आपको लोअर टमी में वो फील होगा। बेबी मूवमेंट्स अराउंड 24 वीक्स तक बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, जब आप और आपके हस्बैंड दोनों से आराम से फील कर सकते हैं। VDRL and HIV is repeated again in the third trimester.
अल्ट्रासाउंड्स पे आपको बताया जाएगा कि बेबी की नेक के अराउंड एक लूप ऑफ कॉर्ड है या 2 लूप ऑफ कॉर्ड है, टाइट है, लूज है, इस तरह से बताया जाता है। सी, अगर बेबी की नेक के अराउंड 1 लूप ऑफ कॉर्ड है, टाइट या लूज कुछ भी हो सकता है, देन इट डज नॉट कॉज मच हार्म टू द बेबी। Anyways, every pregnancy these days I believe is an institutional delivery, है ना, when you go in labor. So हम आपके बेबी का हार्ट बीट रेगुलरली मॉनिटर करते रहते हैं. What happens is कि जब बेबी के नेक के अराउंड कॉर्ड होता है, कॉर्ड इज द ओनली चैनल विच कनेक्ट्स यू योर यूट्रस टू सर्विक्स, एंड आई एम होपिंग कि जिस तरह का डिस्चार्ज आप मेंशन कर रहे हो, दिस इज जस्ट अ फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज विच इज नॉर्मल इन प्रेगनेंसी. So, concluding the session, I hope you got all the information about the antenatal testing and the importance of antenatal testing. Why getting the antenatal tests is important, so that कोई भी problem at the earliest हम pick कर लें और उसे minimal treatment से वो problem हमारी solve हो जाए. And if you have any problem, any query, you can contact me at Healing Hospital. We are also available for telemedicine. And keep safe, keep wearing your mask, maintain social distancing and hand hygiene. Thank you very much.